Madhu. We are ready. Hello. Hi. Good evening. Welcome to AccuCheck Wealthy. Hello. Hi. Good evening. Welcome to AccuCheck Wealthy. I absolutely love our AccuCheck Wealthy family, which comes before time for all our sessions and motivates us. थैंक यू सो मच. मैं आप हर एक को इंडिविजुअली ग्रीट करना चाहूंगी. हेलो मिस्टर विनोद, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हेलो प्रमोद जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग बिफोर टाइम. हेलो मिस्टर तेरखेड़कर, गुड इवनिंग. हेलो मिस्टर चक्रवर्ती, वी आर हैप्पी टू हैव यू. हेलो समीर जी, गुड इवनिंग. हेलो कालीचरण शर्मा जी, आप बीच में नहीं थे सेशंस में. आई होप आपकी तबीयत ठीक है, आपकी शुगर अंडर कंट्रोल है. Let's wait for our AccuCheck Wealthy family and then we'll start today's discussion. A warm welcome to all my lovely AccuCheck Wealthy members. Thank you so much for being a part of today's session. Hello, Nayanji. Good evening. Thank you for joining before time. I have to tell you this. All of you motivate me and my team 2x to perform the best, to give you more information, to keep you updated. We have some more users. Let me greet them. Hello, Ashok ji. Good evening. How are you? I hope you are taking good care of your blood sugar and they are under control. Hello, Reshma ji. I see you as a new member in today's session. Welcome to AccuCheck Wealthy webinars. हेलो यादव जी, गुड इवनिंग. बीच में नहीं थे आप कुछ वीक्स के लिए. आई होप आपकी ब्लड शुगर अंडर कंट्रोल है, यू फील बेटर. All right, let's wait for few of our AccuCheck Wealthy family and then we'll start with today's discussion. Yes, you see a special guest, a special member. I'm soon going to introduce her to all of you. Meanwhile, let's take a minute more. I would love to know in the chat box what is today's session about. If you all can update what is it, what is today's session, what is the name of today's session, what are we going to discuss? Thank you. Thank you. Thank you for all your messages. I'm glad to see you all week on week. अभी मुझे आप सबके ना names registrations की आदत हो गई है. So I see all your names frequently. Thank you so much for joining. Hello, hi, good evening. Thank you for joining today's session. I see few more members. Let me talk to them. Hello, Shaktidhar ji, कैसे हैं आप? I see you after a long time today. I hope your health is good. Hello, Samir ji. Good evening. Thank you for joining today's session. Wow. I am super excited. I have so many members. Greeting everyone will take really a but I have to acknowledge all of you. I need to talk to each one of you. Please connect with your health coaches on the coach box. And if you want to talk to me, if you want to discuss any of your major health concerns, feel free to connect and discuss about it. All right. Without any more wait, let's start with today's discussion. Let's meet our special guest for today. Yes, we have the achiever for the month of June 2023. Somebody who has had an amazing transformation journey. Yes, you heard it right. It is a complete transformation journey where you will understand that somebody who has reduced her blood sugar levels. Um, so sorry. Suchitra ji, could you go on mute? Because I think the voice has an echo. अब आ रहा है? म्यूट कर दीजिए, आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए. Thank you. Yes. So we have most special member, somebody who has had a great journey.
She has been with us for more than 18 to 24 months as a part of our AccuCheck Wealthy family. She's our member who has completely transformed her health. Let me highlight her achievements with a lot of happiness and a proud feeling, because me and my team are constantly working on this and getting such dedicated members, dedicated users who work on all the suggestions and are motivated enough to have an entire transformation journey is really commendable. Uh, Suchitra Banerjee, we have today with us. Let me highlight her achievements. HbA1c reduction of more than 5%. She started with a journey of 11.4 to 11.6 with us. She reached down currently to 6.4 to 6.5. It is a complete 360-degree transformation. From a heavy diabetic on a heavy dose of medication, she has now come down to almost one fourth of her medication intake. her डॉक्टर इज वेरी हैप्पी एंड जस्ट कीप्स आस्किंग हर आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जिसके वजह से इतना हेवी इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे पड़ा है. Her post meal blood sugars were above 500, 530, 550. That was the range. Currently, her blood sugars are in the range of 150 to 200, which is amazing and commendable. Her fasting blood sugar ranges earlier when she started the program were in the range of 300 to 350, and currently they are in the range of 100 to 120 or maximum 130. Wow. Can you imagine somebody who had given up on working on her health a year and a half before now stands in front of 1,25,000 users and is giving us all motivation to do better? Yes, we welcome you, Suchitra Banerjee ji, and we are glad to have you as a part of the highest achiever for the AccuCheck Wealthy program for the month of June 2023. Welcome. Great. So let's start our discussion with Suchitra ji today. Suchitra ji, before that, would you like to introduce yourself? गुड इवनिंग। मैं सुचित्रा बैनर्जी कोलकाता से हूँ। मैं 48 इयर्स की हूँ। मैं एक होम मेकर के साथ साथ प्राइवेट ट्यूटर भी हूँ। मेरे घर में मेरे पति और मेरी बेटी है। तो मैं सारा दिन इन लोगों की देखभाल और इन लोगों का खाने पीने पर और घर के कामकाजों का ध्यान रखती हूँ। इसी में और साथ साथ बच्चों लोग को पढ़ाना भी पड़ता है, तो इसी में मेरा समय बीत जाता है, जिसके कारण मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं रख पाती थी। लेकिन जब से मुझे पता चला कि मुझे डायबिटीज है, तब से मैं अपना ध्यान रखने लगी हूँ। इन लोगों के साथ साथ मैं अपना ध्यान रखने लगी हूँ। Great. Thank you so much for that small and sweet introduction, Suchitra ji. Let us come to your health journey, because I and with me all our users want to understand, how is this drastic transformation from a heavy diabetic to a pre-diabetic. And I'm sure that if you stay with us for more 1 year, you will soon get in the range of a non-diabetic blood sugar, and your journey towards it is really amazing. Let us go a little back. थोड़ा हम पीछे जाते हैं और आपके हेल्थ जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं. जब आपने पहली बार ये देखा कि आपको ब्लड शुगर हाई आया है या आपको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है, तो किस तरह की फीलिंग थी? आपके डॉक्टर ने आपको क्या एडवाइस दी? मेरा जब शुगर डिटेक्ट हुआ वो 2019 था। तो उस समय कुछ कुछ मतलब ट्रबल आ रहा था, जैसे मेरा विजन ब्लर हो रहा था और बहुत फ्रिक्वेंटली प्यास लगता था और थकान महसूस होती थी। सारा दिन लगता था कि जैसे नहीं सोए रहे, काम में भी मन नहीं लग रहा है और मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उस समय हमने टेस्ट करवाया, तो उस समय का रीडिंग तो मतलब फास्टिंग था 296 टू 300 और पीपी था 537 और HbA1c था 11.6।
तो डॉक्टर को दिखाया तो वो भी बोले कि क्या तुम ऐसा की हो कि इसके लिए तुम्हारा इतना बढ़ गया, इतना ज्यादा हो गया। तो हमने कहा कि बस जैसे रेगुलर खाना वाना खाते थे ऐसे ही हो गया। तो बोले नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो मेडिसिन ओवरडोज दिए। फिर 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने कहा कि ये टेस्ट करवाओ, करवा के आओ। तो उसके बाद से फिर मतलब वही वो चल रहा है, लेकिन घट नहीं रहा है कैसे भी। मतलब खाना खा रहे हैं तो खा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा तो फ्रस्ट्रेशन होने लगा कि क्या करें नहीं करें। तो उसके बाद मैं ये वेल्दी ऐप जब ज्वाइन की, तो उसमें आके मुझे मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ उसमें आने के बाद। ग्रेट। हाँ ओके, सो सुचित्रा जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस ओवरव्यू कि किस तरह से आपकी जर्नी शुरू हुई। लेकिन मैं और थोड़ा पीछे जाना चाहती हूँ। आपने ये बताया कि किस तरह से डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा, कैसे आपको टैबलेट्स पे स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये नीड आपको कब लगी कि मुझे कुछ सोल्यूशन ढूंढना है, मुझे खुद के हेल्थ पे काम करना है, या मुझे अब इस तरह से सिर्फ दवाई लेके या अनहेल्दी रूटीन रख के या लाइफस्टाइल पे ना काम करके अभी नुकसान और हो रहा है। सो वो मोमेंट क्या था जब आपको लगा कि यस, दिस इज द टाइम, अभी मुझे मेरी हेल्थ जर्नी शुरू करनी है? अगर आप उसके बारे में बता सकें। जी। अब हुआ ये कि डॉक्टर तो मेडिसिन दे रहे हैं, और डॉक्टर ने हमसे कहा कि आप वॉक कीजिए, और वो डाइट चार्ट जो मतलब प्रोवाइड किया जाता है वैसे ही डाइट चार्ट मिला। तो लेकिन वो फॉलो करना ज्यादा मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जो मेजरमेंट होता है कि 100 ग्राम्स इतना, आप 50 ग्राम्स ये लो वो लो, तो वो मतलब कुछ दिन फॉलो करने के बाद लगा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, नहीं हो पा रहा है। तो मैंने एक नया एक्वाचेक मंगवाया। तो उसके पीछे ऐसा था कि मतलब वेल्दी ऐप का ऐड था। तो मैंने सोचा कि कुछ नया ही लग रहा है। इससे पहले सही मायने में मतलब पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है कि मतलब शुगर के बारे में कोई बताएंगे कि नहीं ऐसे खाना है, ऐसे चलना है, ऐसे लाइफस्टाइल करना है। ये पहले मतलब किसी से भी मुझे पता नहीं था, सुना भी नहीं था। तो जब मैंने वो देखा तो उसका वो मतलब स्कैन किया। स्कैन करने के बाद सोचे कि चलो एक्सपेरिमेंट करके देख ही लेते हैं कि इसमें भी क्या है। तो उसके बाद वहां से मेरे पास फोन आया। जब मैंने उसको स्कैन किया तो उसके बाद वहां से कांटेक्ट किया गया। तो कांटेक्ट करने के बाद मैंने पूछा कि क्या करना है इसमें। तो बोले कि जो आपका रूटीन चल रहा है, जो मेडिसिन चल रहा है वो सभी चलेगा, लेकिन उसको कैसे लेना है, कब लेना है, और खाना क्या खाना है, कितना खाना है, ये आपको बता दिया जाएगा। तो उसके 2 दिन बाद मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। रजिस्ट्रेशन करवाने के 2 दिन बाद मेरे हेल्थ कोच मधुरिमा का फोन आया। तो उन्होंने मुझसे बातें की, कहा कि आपका क्या लाइफस्टाइल है, आप सुबह मतलब कैसे सारा दिन आप क्या क्या करती हैं, सारा दिन का क्या क्या रूटीन है आपका, वो अगर आप हमको बता देंगी तो उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर दूंगी। तो मैंने कहा जी। ठीक है। तो उसके बाद बताया तो मैंने पहले इग्नोर किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें होगा या नहीं। तो मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। मतलब पहले पहले ठीक है कर लेते हैं, करेंगे, क्योंकि सारा घर का काम करने के बाद ना फिर अपने लिए कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता है कि राइट। अपने लिए कुछ करें। अच्छा छोड़ो, दी है मत, ठीक है कर लेंगे कर लेंगे, ऐसा करने के बाद फिर वहीं से बार बार वो फोन की कि आपकी मैडम ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे होगा। फिर हमको लगा कि नहीं, गरज तो मेरा ही होना चाहिए, उनका क्या है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर इस पर हमने ध्यान दिया। ध्यान जी। देने के बाद जी। ध्यान देने के बाद मेरा इतना थोड़ा सा ट्रैक पे आया है सारा चीज। ओके, ग्रेट। थैंक यू सुचित्रा जी फॉर शेयरिंग दैट। आपने कितने सरल शब्दों में कहा है। मैं हमारे यूजर्स को 1 मिनट यहाँ पे लेके बताना चाहूंगी। फॉर ऑल आवर एक्यूचेक वेल्दी फैमिली, प्लीज अंडरस्टैंड the problem with a standard diet plan or the suggestions with your standard doctor will give is adherence. It is very important to understand this कि आप एक ही टाइम पे रोज खाना खाना सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता।
इतने क्वांटिटी में ही खाना है, इतना गिन के खाना है, इतना ही लेना है, ये थोड़ा सा डेली रूटीन में हमारे लाइफस्टाइल में मुश्किल होता है. So what exactly helped Suchitra ji as step one was easy following the routine. ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज शुरू से मुश्किल है तो उसको फॉलो करना लॉन्ग टाइम के लिए काफी दिक्कत वाला हो सकता है. इंस्टेड यहाँ पे क्या हेल्प किया या क्या मदद किया सुचित्रा जी को, वो ये था कि उनको कोई स्ट्रिक्ट अध्यरन्स नहीं था कि आपको एक कटोरी चावल ही खाना है, आपको आधा आधा कटोरी दाल ही लेना है, ऐसा नहीं था. तो वो जो एक मेंटल स्ट्रेस होता है वो नहीं था. उनके रूटीन के हिसाब से उनका प्लान पर्सनलाइज किया गया एंड इट वाज नॉट एज पर द ब्लड शुगर लेवल्स. डेफिनेटली अल्टीमेट गोल यही था कि उनकी शुगर कंट्रोल हो जाए, बट टू स्टार्ट विथ इट वाज वन स्टेप एट अ टाइम, जिसको फॉलो करने में काफी आसानी होती है. ऑलराइट, कमिंग बैक सुचित्रा जी, आई थिंक शुरू का आपका हेल्थ और शुरू में जो आप किस तरह से आपका आहार रखते थे, आपका डाइट रखते थे, उससे कंपैरिजन में अभी का आपका जो डाइट है उसमें, या अभी का आपका जो एक्सरसाइज है, रूटीन है, उसमें काफी सारा फर्क आया होगा. सो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year to 1.5 year, ऐसी कौन सी चीजें आपने रेगुलरली फॉलो की? मुझे पता है कि आपकी न्यूट्रिशनिस्ट ने आपका पर्सनलाइज रूटीन बनाया होगा, बट अगर टॉप ऐसी 3-4 चीजें आप बता पाए जिसके वजह से आपकी एंटायर हेल्थ में फायदा हुआ और ओवरऑल करने में भी आसानी थी. जी, मेरा जैसे पहले भी मैं खाना खाती थी तो कोई टाइम का ठीक नहीं था. तो मेरी जो हेल्थ कोच है उन्होंने पहले वो टाइम फिक्स किया कि आप जो खा रही हैं वैसे ही खाइए, लेकिन उसका एक टाइम ठीक कीजिए. क्योंकि पहले क्या होता था कि ब्रेकफास्ट का कोई टाइम नहीं था. कभी 9 बजे 10 बजे जैसे होता है कि घर का काम संभाल लेने के बाद, सबका कर देने के बाद जो होता है, तो उसका वो टाइम बताए कि नहीं, एक ब्रेकफास्ट का आप एक टाइम रखिए, लंच का टाइम रखिए, और इवनिंग स्नैक्स का टाइम रखिए, और फिर रात में डिनर का टाइम ठीक रखिए. तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये बहुत बड़ी चीज है. और एक्सरसाइज में जो हुआ, क्योंकि मैं पहले उसको बता दी थी कि मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ. तो उसने मुझे बताया कि ठीक है, आप जैसे मतलब वॉक करती है, मैं हर दिन ही वॉक करने निकलती हूँ 1 घंटा. वो भी मैं अपने टाइम के अनुसार निकलती हूँ. तो और शाम में ही जाती हूँ, ये नहीं कि मैं सुबह ही चली गई, नहीं जाती हूँ, मैं अपने टाइम के अनुसार जाती हूँ. तो वो कि कुछ हैंड मुद्रा बताई और फ्री हैंड थोड़ा सा बताई कि इसको आप रेगुलर ऐसे कीजिए. तो इससे हमको बहुत ज्यादा सुविधा हुआ. और वो कभी प्रेशर नहीं डालिए कि नहीं आपको ऐसे ही करना है और इतना ही करना है, ऐसा नहीं. वो बताई कि आप अपने सुविधा के अनुसार जैसे आप फ्री लगे, जब आपको समय मिले तब आप कीजिए इसको. जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट सुचित्रा जी. हम थोड़ा आगे चलते हैं आपकी जर्नी में. अ, देखिए, काफ़ी सारे हमारे यूज़र्स हैं जिनको सबको अपनी हेल्थ पे काम करना है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 1 मंथ उनका जो मोटिवेशन है या उनका जो रेगुलैरिटी है या उनका जो कंटिन्यूएशन है, उसमें रुकावट आ जाती है कि उनको डेली करना तो होता है बट नहीं कर पाते क्योंकि मोटिवेटेड नहीं है या उनको ऐसे नहीं लगता है. तो आपके ऐसे कौन से फेजेस थे जिसमें आपको ये लगा कि नहीं, मुझे डेली बेसिस पे करना है, और कौन सी चीजों ने आपको मोटिवेट किया टू एंश्योर कि आप डेली बेसिस पे जो भी आपको बताया जाए वो रेगुलरली फॉलो करें? जैसे मैंने पहले बताया कि मैं तो मतलब 1-2 महीना तो सोचने में ही चला गया कि करें कैसे करें, टाइम निकालें, छोड़ो नहीं करेंगे ऐसे. और उसके बाद लगा कि नहीं, जब ये हमको बार बार बोल रही है तो करना चाहिए. कम से कम अपना, अगर हम स्वस्थ रहे तो मेरा पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा. तब लगा कि नहीं, अब इसको फॉलो करना चाहिए. तो उस समय से मैं इसको फॉलो करने लगी, टाइम टू टाइम अपने लिए समय निकाली सबका काम करने के बाद.
अपने लिए समय निकाली कि नहीं हमको 10 तक में हमको ब्रेकफास्ट करना है सुबह में, उसके बाद मिड मॉर्निंग में एक फल लेना है, और फिर उसके बाद लंच का भी टाइम ठीक रहा, और इस तरह से धीरे 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 इसको मैं प्रैक्टिस में ले आई कि नहीं इसको हमको ऐसे ही करना है। जी, बहुत अच्छी बात है और काफ़ी सिंपल चीज़ें होती हैं एक्चुअली। योर लाइफ़स्टाइल इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स थिंग। काफ़ी सारा कुछ इसमें साइंस अप्लाई होता है। बट आपके अध्ययंस के लिए, आपको फ़ॉलो करने के लिए बहुत बेसिक चीज़ें हैं। जैसे सुचित्रा जी के केस में सबसे पहले हमने उनके पेन पॉइंट्स या उनका जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उसको आइडेंटिफाई किया कि उनको किस समय पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको कौन से खाने से ब्लड शुगर बढ़ रही है, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई की। उसके बाद उनके लिए एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाया और वो प्लान फिर वो रेगुलर बेसिस पे अध्ययन करने लगे, जिससे आई विल अगेन रिपीट दिस एंड आई विल रिपीट दिस ओवर एंड ओवर सुचित्रा जी, बिकॉज दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। 11.6% HbA1c से आज वो 6.5% HbA1c पे है। Great. I'm super proud not just of you, but my entire team who works day in and day out to ensure आप जैसे और 1,25,000 यूजर्स को ये पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिले। ऑलराइट, मूविंग अहेड सुचित्रा जी, आई एम श्योर कि आपकी जो फैमिली है, आपकी जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है जो आपके घर में आपके साथ है, आपके हस्बैंड, आपके किड्स, आपके पेरेंट्स, उन लोगों ने भी आपके इस हेल्थ जर्नी में आपका काफी साथ दिया होगा। तो आप यहाँ पे हाईलाइट करना चाहेंगे किस तरह से आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स ने आपका साथ दिया इन दिस जर्नी? सभी को पहले तो जैसे मतलब डायबिटीज जब हुआ तो सबको थोड़ा सा टेंशन हो गया कि इस उम्र में ऐसे मतलब इतना जल्दी हो गया, तो कैसे क्या होगा? तो सबने मतलब जैसे सबका नॉलेज है कि नहीं ये मत खाओ, ऐसे चलो, इसको मत करो, ऐसे मत करो, तो ये सब ध्यान में रखते हुए तो फिर बाद में बोले कि नहीं, ज़रूर होगा अगर तुम कोशिश करोगी, तो ज़रूर होगा। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत साथ दिया। मेरे फैमिली मेंबर्स जो हैं, वो लोग भी बहुत सपोर्टिव थे मेरे लिए कि नहीं मतलब जब-जब जो चीज़ का ज़रूरत पड़ा, वो हमेशा मेरे साथ रहे और हमको मतलब हेल्प किए। ग्रेट। आई एम श्योर आपके प्रोग्राम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ अभी तक का आपका ये एप्लीकेशन में या अभी तक जो भी एप्लीकेशन के फीचर्स आपने यूज़ किए हैं, उसमें सबसे फेवरेट फीचर कौन-सा है और वो क्यों है? इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, किसको छोड़ के किसके बारे में बोलें। तो जैसे ब्लड शुगर लॉग करना, सारा दिन में हम कितना पानी पीते हैं उसको लॉग करना, और क्या खाएँ वो देने के बाद उसका लॉग, वो फिर इनसाइड में सारा आ जाता है कि हाँ, आपने ऐसे आज इतना लिया है, ठीक-ठीक है, नहीं तो इसमें आपका कितना कम है, फैट परसेंट कितना लेना है, फाइबर कितना लेना है, ये सब बताती हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है चैट सेक्शन, क्योंकि जो मेरी हेल्थ कोच है, वो हमेशा ही मेरे साथ रहती है। जब भी हमको कोई प्रॉब्लम होता है, तो तुरंत उससे बात करना कि हाँ, तुरंत वो सॉल्यूशन देती है कि नहीं, आपको ऐसे करना है। आज अगर आप ज़्यादा खा ली हैं कुछ, तो इसको थोड़ा-सा मैनेज कर लीजिए ऐसे। तो तुरंत ही मतलब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कोच सेक्शन जो मतलब चैट करना सबसे ज़्यादा अच्छा है। ग्रेट। We are glad to hear that about our team member. Thank you so much for sharing that, सुचित्रा जी। Moving ahead, I am sure कि शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत लगी होगी कि ये लोग फ़ोन करके मुझे क्या बता रहे हैं, प्रोग्राम के बारे में कैसे बता रहे हैं, मैं कैसे ट्रस्ट करके पैसे इन्वेस्ट करूँ अपने हेल्थ के लिए। तो हाउ डिड यू बिल्ड दैट ट्रस्ट, या आपको किस तरह से ऐसे लगा कि नहीं, मुझे एक बार ये ट्राई करना चाहिए? जैसे पहले ही मैं बताई कि डायटीशियन से डाइट चार्ट इससे पहले भी मैं बहुत बार ले चुकी हूँ। तो वो क्या होता है कि फ़ॉलो करना पॉसिबल नहीं होता है। 1-2 दिन वो डोंट और डू और डोंट्स के बीच में इतने सारे मतलब सिर्फ़ एक पर्चा लिखा हुआ आता है।
कि इसको बाकी मतलब उसके ऊपर मतलब बताना कि नहीं आपको ऐसे करना है, ये नहीं, सिर्फ़ एक कागज़ हाथ में थमा देती है कि ऐसे करो। तो उससे मतलब थोड़ा-सा मतलब झल्लाहट सा ही था कि नहीं हमको नहीं करना है, लेकिन जब ये देखे कि ऐसा है तो सोचे एक्सपेरिमेंट करके एक बार देख ही लेते हैं। इतने बार तो हर जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो इसको भी एक बार करके देख ही लेते हैं कि क्या होता है। तो जब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया तो वहाँ से जब फ़ोन आया तो कोच से बात होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। लगा नहीं कि मतलब मैं किसी पराये से बात कर रही हूँ, लगा कि बहुत अपने ही हैं, कोई क्लोज़ हैं जिससे मैं बात कर रही हूँ और समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा था। तो जब वो ने बताया और ये नहीं कहा कि आपको जैसे मैं बंगाली हूँ तो मेरा क्विज़िन है कि मतलब दाल-चावल, फिश, चिकन ये सब तो रहेगा ही। ये नहीं कि नहीं आपको इडली, डोसा, सांभर ही खाना है या आपको मतलब रोटी खाना है या जैसे मेरा जो क्विज़िन है उस अनुसार उन्होंने मेरे खाने का चार्ट बनाया। कभी प्रेशराइज़ नहीं किया कि नहीं आपका टारगेट ये है तो आपको इतना में मतलब इन दिनों में ही आपको इतने में आना है। तो बहुत ही फ्री छोड़िए कि नहीं जितना आपको हो, जैसे आपसे संभव हो, आप उतना ही कीजिए और वैसे ही कीजिए जैसे मैं बता रही हूँ। तो फिर थोड़ा धीरे-धीरे इस पे ट्रस्ट आने लगा मेरा कि नहीं ये ठीक-ठाक है। मैंने जो जहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो ये मेरा ठीक-ठाक है। बस। ग्रेट। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट सुचित्रा जी। आगे चलते हैं थोड़ा आपकी डॉक्टर की ओर। आई एम श्योर जब पहली बार आप 11.6% HbA1c जो आपका 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर है वो लेके गई होंगी, कंपैरेटिवली जब आप 6.5% आपका HbA1c का रिपोर्ट ले गई होंगी, तो डॉक्टर की किस तरह की रिएक्शन थी? कैसी दवाइयाँ आपकी कम की? पहले कितना डोज़ था? अभी कितना डोज़ है? हुँ। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो बोले कि इतना जल्दी तब क्या-क्या करती हो? क्या-क्या फ़ॉलो करती हो? कितना एक्सरसाइज़ेज़ करती हो? कैसे डाइट चार्ट फ़ॉलो करती हो? तो ये सब पूछा तो मैंने बताया कि हाँ, ठीक है, मैं ऐसे सारा दिन का मेरा ये रूटीन है, मैं ऐसे-ऐसे खाना-वाना खाती हूँ। बोली ठीक है और जब मेरा 11.6 था तो उस समय डोज़ेज़ भी बहुत ज़्यादा था मेडिसिन का। तो उसके बाद डॉक्टर ने जब देखा कि ओवरऑल ठीक है इसका, तो धीरे-धीरे बोले कि नहीं हम डोज़ेज़ कम कर देते हैं। डोज़ेज़ कम कर दिए। ओके। तो इफ यू डोंट माइंड क्या आप बताना चाहेंगे कि पहले कितने टैबलेट्स थे, उनका पावर कितना था? और अभी कितने टैबलेट्स हैं और उनका पावर कितना है? पहले मतलब मेडिसिन का नाम बता सकते हैं तो? हाँ जी, जी, नो प्रॉब्लम। हुँ। तो पहले जैसे मेरा था वो ग्लाइकोमेट 500 लेती थी मैं, तो उसका डोज़ेज़ कम हो गया ग्लाइकोमेट 250 और ग्लाइप्राइड 1 है और तेंजिनाओ है और चूँकि मेरा ये भी है कोलेस्ट्रॉल भी है, तो उसके लिए भी मेरा मेडिसिन चलता है। तो पहले जो लेती थी उससे वो घटा दिए मेडिसिन। ग्रेट। तो क्या हम ये कह सकते हैं डोज़ हाफ हो गया आपका? हाँ? सॉरी। डोज़ हाफ हो गया है आपका? हाँ, हाँ, डोज़ आप ग्रेट, ओके। दिस इज़ जस्ट इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कि उनका डोसेज हाफ हो गया है। Other than that, I'm sure there must be a proper exercise routine जो आपके कोच ने आपको गाइड किया होगा, आप डेली बेसिस पे फॉलो करते होंगे। तो आवर यूजर्स आर ईगर टू नो कि किस तरह के एक्सरसाइज आप डेली बेसिस पे करती हैं, कितने समय के लिए करती हैं? जैसे मैं टहलने के लिए जाती हूँ 1 घंटा, शाम में मैं टहलने जाती हूँ 1 घंटा, उसके बाद घर आके थोड़ा फ्री हैंड एक्सरसाइज़ मतलब हाथ-पाँव जितना चला सकती हूँ वैसे और वो मेरे कोच ने बताई थी वो प्राणा मुद्रा। तो वो 5 मुद्रा बताई थी कि आपको जब भी टाइम मिले, आप दिन में 2 बार, 3 बार आराम से कर सकती हैं। तो वैसे उसको करती हूँ ग्रेट। और जी आप कुछ कह रही थी? नहीं, बस यही बताई कि ऐसे ही ओके। करती हूँ। ओके। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इट्स नॉट अ वेरी हेक्टिक एक्सरसाइज रूटीन। पूरे दिन में 1 घंटा वॉक और 15 से 20 मिनट योगा एक्सरसाइजेस सुचित्रा जी ने की है। पहले भी वो थोड़ी बहुत एक्टिव थी लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता था। शी यूज्ड टू हार्डली वॉक फॉर 15-20 मिनट्स इन द डे।
वो भी अगर कभी सुबह, कभी शाम को, कभी टाइम मिला, कभी स्किप हो गया, कभी कुछ घर का काम है, तो वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता था, जो अभी काफ़ी रेगुलरली हो रहा है। सो आउट ऑफ 24 आवर्स अगर आप 1 घंटा खुद के बॉडी को देते हैं टू स्टे एक्टिव, टू स्टे फिट, इट इज़ डेफिनिटली गोइंग टू हेल्प यू। किसी भी तरह का प्रोग्राम आप ज्वाइन कीजिए या आपका करंट प्रोग्राम है उस पे आप काम कर रहे हैं, कोई भी डॉक्टर, कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट, कोई भी कोच आपकी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक आप खुद की मदद नहीं करना चाहते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 घंटा अपने बॉडी के लिए दीजिए जहाँ पे आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो नॉर्मल ब्रिस्क वॉकिंग भी हो सकता है, वो योगा हो सकता है, वो जिम, साइक्लिंग, स्विमिंग, किसी भी तरह की एक्सरसाइज जो आप एंजॉय करते हैं, जो आप कंफर्टेबल है, वो आप प्लीज रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिए। ऑलराइट, मूविंग ऑन, सुचित्रा जी, आई एम श्योर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली आर वेरी हैप्पी विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। उनको काफी खुशी है कि आपने आपके हेल्थ पे ऐसे काम किया है। तो आपके हस्बैंड की, आपके किड्स की, आपके फ्रेंड्स की क्या रिएक्शन रही है जब उन्होंने आपकी ये पूरी हेल्थ जर्नी को समझा है? तो सभी मेरे अचीवमेंट पे सभी खुश हैं कि कहें कि नहीं, थोड़ा सा और अगर हम इस पे मेहनत करेंगे तो और भी मेरा घट जाएगा। तो मैं भी थोड़ा सा मतलब नेग्लेक्ट करती हूँ कभी कभी कि नहीं, अब मन नहीं लग रहा है तो नहीं करेंगे। बोले ऐसा मत करो, क्योंकि जब इतने दिन में तुम्हारा यहाँ तक आ गया है तो और थोड़ा सा कोशिश करोगी तो तुम्हारा और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तब तुमको ऐसा भी हो सकता है कि तुमको मेडिसिन नहीं लेना पड़े। तो यही सब सुन के अच्छा लगता है, कोशिश भी कर रही हूँ कि ताकि आगे चल के मेडिसिन नहीं लेना पड़े, तो उसके वो मेरे लिए भी अच्छा है। जी, बिल्कुल। हमारे आज के सेशन में काफ़ी सारी फीमेल पेशेंट्स हैं, जिनका स्टोरी एग्ज़ैक्टली आप जैसा है, जो काफ़ी बिज़ी हैं, जॉब के साथ घर सँभालती हैं या फिर उनको पूरे फैमिली का ध्यान रखना पड़ता है। कुकिंग, क्लीनिंग, ऑल डे टू डे एक्टिविटीज़, हाउसहोल्ड कोर्स सब उनको करना पड़ता है। मेबी दे आर वर्किंग, मेबी दे आर नॉट वर्किंग, बट द न अमाउंट ऑफ एफर्ट जितना वो मेहनत कर रही हैं, उतना टोटली इक्वल है। तो उसमें कहीं ना कहीं दे आर नॉट एबल टू गिव इनफ टाइम फॉर देयर हेल्थ, और इतना सब करने के बाद उनको थकान आ जाती है। उनको ये नहीं समझता कि अभी तो मैं थक गई हूँ, अभी मैं ये डाइट और ये एक्सरसाइज और ये सब नहीं कर सकती। तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि हमने आपको कुछ अलग रेकमेंड किया या आपके डेली खाने के जो सिंपल ऑप्शंस हैं वही बताएं। तो अगर आप 4-5 ऐसे फूड आइटम्स बताएं जो आपके अभी के डाइट में है, या रफली आपका डेली रूटीन किस तरह से है सुबह उठने से रात सोने तक, उसका आप थोड़ा सा अगर एक आइडिया हमको दे दें। जी। मैं जैसे सुबह उठती हूँ तो खाली पेट मेथी वाटर किसी दिन, नहीं तो किसी दिन चिया सीड वाटर लेती हूँ। उसके हाफ एन आवर या 1 घंटे बाद मैं लिकर चाय और 2 क्रीम क्रैकर बिस्किट लेती हूँ। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में किसी दिन, जैसे जिस दिन मैं घर में जो बनाती हूँ, जैसे ज्यादातर या तो ओट्स दलिया या रोटी सब्जी, उसके साथ सलाद या फिर छाछ, इस टाइप से लेती हूँ। और फिर दोपहर में एक फल लेती हूँ जो अवेलेबल रहा, जो मतलब डायबिटीज लोगों को खाना चाहिए, जैसे सेब, नाशपाती या कीवी, जो भी अवेलेबल रहा। ये नहीं कि आम और कटहल ये सब नहीं। तो जो अवेलेबल रहा वो एक फ्रूट्स लिए। उसके बाद मेरा लंच टाइम 1:30 से 2 बजे तक का रहता है, कि उसमें हमको खाना खा लेना है। और फिर इवनिंग में वही 5, 5:30 के करीब मैं वो, या जिस दिन जो हुआ, अगर लिकर चाय रहा तो नहीं तो जिस दिन कॉफी खाने का मन किया तो उस दिन मैं कॉफी लेती हूँ। और फिर उसके बाद मेरा ट्यूशंस रहता है, वो कंप्लीट करने के बाद और घर में भी सब आ जाते हैं, तो 9, 9:30 तक में मैं अपना डिनर कंप्लीट कर लेती हूँ। और डिनर के बाद 10 मिनट वॉक करने के लिए कहा गया है हमसे। जब भी मेजर मील के बाद वॉक करने के लिए कहा गया है तो वो मेंटेन करती हूँ मैं रेगुलर। और उसके बाद वही 11 से 11:30 तक मैं सोने चली जाती हूँ।
मेरा डेली का रूटीन बस ऐसे ही मैं फॉलो करती हूँ। बट मेजर मील के बाद मेरा 10-15 मिनट का चलना रहता है, वॉक करना रहता है, वो ग्रेट, मस्ट है। ग्रेट। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो सुचित्रा जी कोई स्पेशल एफर्ट नहीं ले रही हैं। घर में जो रोटी, सब्जी, दाल, राइस, सैलेड, छाछ, कर्ड, वेजिटेबल्स, करीज, डोसाज, इडलीज, ब्रेकफास्ट आइटम्स जो बन रहे हैं उसी को वो ले रही हैं। कोई भी यहाँ पे स्पेशल आइटम नहीं है। काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं डाइट पे चला जाऊंगा या चली जाऊंगी तो मुझे अलग मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा या मेरे लिए कुछ अलग रेसिपीज होंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके रेगुलर रूटीन में, आपके रेगुलर खाने में ही हम मॉडिफिकेशंस करते हैं। जैसे पहले आप 4 रोटी ले रहे थे या 4 परोठे ले रहे थे तो उसको हम 3 कर देंगे, 3 से वो 2.5 हो जाएंगे, 2.5 से वो 2 हो जाएंगे। इस तरह से आपकी हेल्थ जर्नी प्रोग्रेस होगी एंड विद दिस यू विल रिड्यूस योर ब्लड शुगर लेवल्स एज वेल। ऑलराइट, मूविंग अहेड सुचित्रा जी, मैं हमारे एक्यूचेक वेल्दी फैमिली को ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप ऑलरेडी एक प्रोग्राम में हैं, ग्रेट, यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप टू वर्क ऑन योर हेल्थ। अगर आपने अभी तक प्रोग्राम में एनरोल नहीं किया है तो लेट मी टेल यू दिस इंफॉर्मेशन, नाउ इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर हेल्थ जर्नी। इट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि डॉक्टर आपको 3 महीने में सिर्फ 8 से 10 मिनट देगा और उसमें सारे क्वेश्चंस पूछना, सारे डाउट्स पूछना, क्या मैं ये खा सकती हूँ, क्या मैं ये स्किप करना है, मुझे किस तरह से रूटीन रखना है, मेरी डायबिटीज, मेरा हाइपरटेंशन, मेरा हाई कोलेस्ट्रॉल, मेरे हार्ट प्रॉब्लम्स, कभी गलती से टैबलेट स्किप हो गई, कभी लंच स्किप हो गया, कभी ऑफिस का प्रेशर है, कभी नींद कंप्लीट नहीं हुई, कभी घर में कोई इवेंट है, कभी मैं होटल जा रही हूँ, रेस्टोरेंट जा रही हूँ, किस तरह से पूरी लाइफस्टाइल को रखना है, ये हम आपको रेगुलर बेसिस पे गाइड करेंगे थ्रू दिस प्रोग्राम। Okay, so please speak to your coach now if you have not already enrolled. If you are planning to enroll, we are currently running with great discount offers. Speak to your coach in the chat tab and she will connect with you. All right, सुचित्रा जी, मैं आपसे स्पेशली ये सवाल हमारे उन फीमेल यूजर्स के लिए पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कोई स्पेशल एफर्ट डाला जिसके वजह से आपको ज्यादा टाइम खुद के हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करना पड़ा? क्या आपने कोई टैबलेट्स, सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, ये सारी चीजें ली है, या फिर आपका पूरा जर्नी एक नेचुरल जर्नी था, ऑर्गेनिक जर्नी था, जो आपने डेली काम जितना करती थी उतना ही काम करके मेंटेन किया है? जी, मेरा तो मतलब 24 घंटे का जो समय है पहले भी मैं बिताती थी, तो उसमें क्या होता था कि आधा समय छोड़ देती थी कि चलो ये नहीं करना है। लेकिन अब जब से मैं इसको फॉलो करने लगी है तो लगा कि नहीं, मेरे लिए भी अपना समय निकालना जरूरी है, क्योंकि सबके लिए हम समय दे रहे हैं, तो हम ही तो दे रहे हैं, तो मेरे लिए कौन समय देगा। तो लगा कि नहीं, मेरे लिए भी अपने को समय निकालना है। पहले जैसे मैं जो समय बर्बाद करती थी उसको अब मैं काम पे लाती हूँ कि नहीं, मुझे इस टाइम में मुझे अपने को समय देना है, खुद को भी पैम्पर करना है, कि नहीं खुद को भी पैम्पर करना है, कि अपने लिए थोड़ा अच्छे से नाश्ता बनाई, कि अपने से अच्छे से खाना से परोसा अपने लिए। तो ऐसे ही मैं अपना मतलब एफर्ट देती हूँ मेरे पीछे, कि सबके लिए जैसा करती हूँ तो मैं खुद के लिए भी वैसे ही करती हूँ। और मेरी फिर डाइटिशियन ये भी बताती है कि नहीं, आपको छोटी मछली भी खाना चाहिए, वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो वो भी लेती हूँ। तो इसी तरह से मेरा सारा दिन का रूटीन है, और मैं अपने लिए भी सारे काम में अपना समय निकाल लेती हूँ, क्योंकि खुद को अगर मैं समय नहीं दूंगी तो मेरे लिए कोई समय नहीं देगा। Absolutely. Great. Thank you for sharing that. Let me highlight this to all our users. हमने उनको कोई vitamins, कोई supplements, कोई protein powders, कोई आयुर्वेदिक medicines, कुछ भी चीजें सजेस्ट नहीं की है। जो भी सुचित्रा जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, अगेन रिपीटिंग, 11.6% से लेके 6.5% HbA1c पे आज सुचित्रा जी खड़ी हैं। The only two reasons is
100% या 90% उन्होंने फॉलो किया है जो जो एडवाइस उनको मिली है. एंड सेकेंड इज कंटिन्यूअस डेडिकेशन एंड इंश्योरिंग एवरी डे बेसिस पे उनको जो जो बताया जाए वो उसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करने की कोशिश करें, और जो भी उनके मेडिकेशंस है, जो भी उनका रूटीन है, उसको रेगुलरली फॉलो करें. यस. मूविंग अहेड सुचित्रा जी, आई एम श्योर कि आपकी आपके कोच के साथ काफी एक अच्छी ओवर दिस 1.5 year बॉन्डिंग हो गई होगी. सो आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट आर दोस 2-3 थिंग्स जो आपकी कोच आपको हमेशा सजेस्ट करती है और उससे काफी ज्यादा आपके ब्लड शुगर मैनेजमेंट पे इम्पैक्ट हुआ है. जैसे वो टाइम टू टाइम उनको बताती है कि क्या खाना है, कैसे खाना है, और वो हमेशा गाइड करती है कि कौन सा वाटर लेना है. जैसे बीच बीच में बताती है कि छोटे छोटे वो टिप्स देती रहती है कि जैसे ड्रम स्टिक, उसको मतलब पानी में भिगो के अगर उसको सारा दिन में जब भी प्यास लगेगा तो वो पीना, और वही ड्रम स्टिक को फिर दाल में डाल के बनाना. फिर छोटी मछली या खाना, ज्यादा बड़ा मछली नहीं खाना. और वो हमेशा मतलब जैसे आपको फल है तो आप स्मूदी बना लीजिए, या आपको भूख लग रहा है तो आप कुछ आमंड ले लीजिए या फिर वॉलनट ले लीजिए. और थोड़ा शाम में आप स्नैक्स में थोड़ा रोस्टेड चना ले लीजिए, थोड़ा सा मूढ़ी ले लीजिए. तो वैसे ही वो हमेशा मुझको गाइड करती रहती है कि क्या लेना है. जैसे मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो तुरंत मैं उसको चैट की कि ऐसे कुछ हो रहा है तो आज हम क्या खाएं. तो बोली कि आप ऐसे खाना ले लीजिए. अगर किसी दिन मेरा ज्यादा हेवी खाना हो जाता है कि, तो फिर वो बता देती है कि नहीं, आज थोड़ा सा आप इसको मतलब हल्के पे रहिए. रात में अगर मतलब कहीं बाहर जाके खाना हो गया तो सुबह में फिर बोलती है कि नहीं, आज आप दलिया ले लीजिए या ओट्स ले लीजिए. हेवी कुछ नहीं लेना है, सिंपल में रहिए. तो ऐसे ही वो हमको हमेशा गाइड करती है. Great. So your health coach is always available to help you, guide you, motivate you. बहुत अच्छी बात है. आई होप आप जल्दी एक नॉन डायबिटिक की जर्नी के टुवर्ड्स बढ़े और आपका HbA1c इसी तरह से कम हो. मूविंग अहेड सुचित्रा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी क्योंकि हमारे काफी सारे यूजर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट स्टेप तो ले लिया है, प्रोग्राम में एनरोल तो कर लिया है, लेकिन एनरोल करने के बाद उनको रेगुलरली फॉलो करना मुश्किल है. वो खुद को मोटिवेटेड नहीं रख पाते हैं कि पहले हफ्ते तो बहुत स्फूर्ति थी, बहुत पॉजिटिविटी थी, बहुत एनर्जी थी, जिससे उन्होंने पहले हफ्ते जम के एक्सरसाइज की, बराबर डाइट फॉलो किया. लेकिन 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद या महीने भर बाद ऐसा होता है कि अभी यार इतना करके भी कुछ इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं क्यों ये कंटिन्यू करूं, या किस तरह से मुझे ये कंटिन्यू रखना चाहिए. तो ऐसे हमारे यूजर्स के लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगी, या आपने खुद का मोटिवेशन कैसे जारी रखा कि डेली करना है, फॉलो करना ही है, डेली एक्सरसाइज करनी ही है, ये आपने किस तरह से खुद को मोटिवेटेड रखा? देखिए, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, मुझे स्वस्थ रखना है अपने को, तो करना ही पड़ेगा. मैंने अपने मन से पूछा कि करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसने कहा नहीं, ये तो गलत बात है कि हम अगर अपने को ध्यान नहीं रखेंगे तो करना ही पड़ेगा. तो मैं भी इसी में समय निकाल के कि नहीं, हमको घटाना है, क्योंकि बीमारी कुछ रहता है ना तो मन अच्छा नहीं लगता है कि हमको ये बीमारी है तो चलो इसके लिए मतलब परेशानी हो रहा है. मेरा भी परेशान, मुझे भी परेशानी हो रही है, घर वालों को भी परेशानी हो रही है. कुछ भी खाने के लिए तुम नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे, परिवार में ऐसा चलता है. तो ये सब भी मतलब कारण है. तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, हर किसी को अपने लिए समय तो निकालना ही पड़ेगा. घर का काम भी होते रहेगा, साथ में अपने लिए भी कुछ समय निकालना जरूरी है, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो जाएंगे तो फिर अपने लिए तो फिर हम क्या करेंगे. तो हम अब अगर अभी से हम अपना ध्यान रखेंगे तो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को तो कुछ मतलब पसंद है कि नहीं, मेरा ये काम, शादी हो गया, बच्चे हो गए तो हम नहीं कर पाए, तो वो हॉबी जो है उस पे समय बिताना चाहिए कि नहीं, ये मेरा हॉबी है, तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं इसमें भी अपना इंगेज करती हूँ, इंगेज अपने को रखूं, या कोशिश करूं कि मैं अपने हॉबीज को फिर से मतलब एक्टिवेट कर लूं, कि ताकि मैं अपने में अंदर में कुछ जोश लाऊं या
एनर्जी से मैं वो काम करूं। तो ये हर किसी को ही सोचना चाहिए मेरे ख्याल से, या मुझे भी लगता है। तो मैं तो अपने हॉबीज के साथ भी समय बिताती हूँ। बहुत बढ़िया सुचित्रा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। एटलीस्ट स्पेंड 30 मिनट्स ऑन द थिंग्स यू लव। अगर हम ये डेली बेसिस पे करेंगे तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ इम्प्रूव होगी, और हमें जो पसंद है उस पे हम फोकस कर पाएंगे। सो प्लीज लिसन टू दिस एडवाइस, दिस इज गोइंग टू कीप यू मोटिवेटेड, दिस इज गोइंग टू कीप यू एंगेज्ड। और जैसे सुचित्रा जी ने कहा, एंड गोल इमीडिएटली नहीं आता, उसके लिए मिनिमम मिनिमम आपको 3 महीने 90 डेज अपने आप पे काम करना पड़ता है, एवरी सिंगल डे। उसी से आपके हेल्थ पे ये इफेक्ट हो। ऑलराइट, ग्रेट। ओके सुचित्रा जी, मुझे तो काफी मोटिवेशन मिला है आपसे बात करके। आई एम श्योर हमारे सारे जो यूजर्स हैं उनको भी काफी मोटिवेशन मिला आपकी जर्नी को सुन के। लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ आवर यूजर्स, देखते हैं कि उनके क्या सवाल है जो वो आपसे पूछना चाहते हैं। Yes, good evening to all of you. I'm so sorry for those who joined a little late. I couldn't greet you personally, but a warm welcome and good evening to all the rest of my AccuCheck Wealthy members. Yes, so सुचित्रा जी, हमारे एक यूजर हैं जो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको जो डायबिटिक इश्यू हुआ, या आपको जो डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हुआ, ये आपके पर्सनल स्ट्रेस की वजह से हुआ, या आपके फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज की, उस वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी? मेरे फादर को था शुगर, और कुछ मेरा पर्सनल स्ट्रेस भी था, तो दोनों मिला के ही ये हुआ है। ओके, ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। पहले किस तरह की आपकी लाइफस्टाइल थी? अभी की लाइफस्टाइल तो आपने शेयर की है, बट पहले की आपकी लाइफस्टाइल किस तरह की थी, वो अगर आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि यूजर्स हमारे डिफरेंस समझना चाहते हैं कि पहले किस तरह का रूटीन होता था और अभी किस तरह का रूटीन है। जब मतलब ये शुगर डिटेक्ट नहीं था, तो उस समय क्या होता था कि ज्यादा टाइम मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर जाती थी। उसका कोई ठिकाना नहीं था। किसी दिन नहीं हुआ तो 12 बजे खाई, नहीं तो कुछ भी नहीं खाई, सीधे लंच पे गई, वही चाय बिस्किट या इधर उधर जो भी मिला थोड़ा थोड़ा खाते रही। उसी से मतलब जब भी लगा कि नहीं भूख लग रहा है तब से वैसे खा ली। तो ये जो मेजर इफेक्ट है, जो ब्रेकफास्ट जो मिस करना, ये मेजर इफेक्ट है ये शुगर का मतलब। तो जब से ये डायबिटीज हुआ है, तो तब से मैं ये बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ कि ब्रेकफास्ट स्किप ना करूं, ब्रेकफास्ट हमेशा टाइम से लूं। जी, इसके अलावा सुचित्रा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, या हमारे यूजर्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आपका 11.6 या 12 के करीब आपका ब्लड शुगर था, HbA1c था, तभी क्या आप इंसुलिन पे थी, या तभी आपको हेवी डोज के टैबलेट्स दिए थे? नहीं, मैंने इंसुलिन नहीं लिया था, डॉक्टर ने इंसुलिन नहीं दिया था, उन्होंने हेवी डोज का दवाई दिया था। कहा कि इसी से मतलब नहीं घटा तो फिर सोचेंगे। तो थैंक गॉड कि उसी से मेरा थोड़ा सा मतलब रेंज पे आ गया, जिसके कारण मेरा मेडिसिन ही चल रहा है। जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट सुचित्रा जी। राजेश जी पूछ रहे हैं कि आपके एफर्ट्स और आपकी कंसिस्टेंसी काफी अप्रिशिएबल है, एंड ही इज अप्रिशिएटिंग योर एंटायर एफर्ट। बट आपने मुद्रास के बारे में कुछ बताया था, तो अगर आप उसकी थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाएंगी, कौन से मुद्रा किस तरह से किए, कितने समय के लिए किए, कौन से थे वो, उसका थोड़ा इंफॉर्मेशन अगर आप दे पाए। जी। तो जैसे मतलब वो प्राणा मुद्रा जो है, वो करना कम से कम दिन में 2 बार 15-20 मिनट तक के लिए मैं करती थी। और जब भी मतलब समय मिलता था, और रात में सोते वक्त भी मतलब सोने जाने के टाइम भी मैं करती थी मुद्रा, प्राणा मुद्रा। Okay, so just for your information, Rajesh ji, there is a typical mudra which is followed in yoga that is called as Prana Mudra. Please drop a message to your health coach and ask her a query on this. She will definitely give you more information when you connect with her.
सॉरी। I hope this helps, Suchitra ji. जी ग्रेट। मैं एक्चुअली ये काफी कॉमन सवाल है, हमारे काफी सारे यूजर्स ने पूछा है। रूटीन आपका किस तरह से था, या वो तो आपने शेयर किया, लेकिन रेसिपीज खाने में आप अगर थोड़ा बता दें कि आप ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, इसमें क्या लेते थे, एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे तो यूजर्स को थोड़ा आइडिया मिल जाए। जी, जैसे मैंने बताया कि ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी या ओट्स या दलिया या ओट्स चिल्ला ऐसे, और ग्रीन सैलेड मेरा हमेशा ही रहता है, वो लंच में भी रहता है और डिनर में भी रहता है। लंच में वही मतलब एक छोटा कटोरी राइस और उसके साथ दाल, ग्रीन रॉ वेजिटेबल्स और मिक्स वेजिटेबल्स और फिश, छोटा जो मछली, ज्यादातर वही प्रेफर करती हूँ मैं, छोटे मछली। और ऑयल, लेस ऑयल खाना, मतलब बहुत कम तेल में खाना बनाना ये। और रात में किसी दिन हुआ तो दलिया ले ली, नहीं तो रोटी, दाल, सब्जी और मछली। मछली मस्ट है। तो यही मेरा रूटीन है। ग्रेट, ओके। और अगर आप बता पाए कि आपने कहा कि पर्सनल स्ट्रेस और कुछ रीजंस की वजह से भी आपकी ब्लड शुगर बढ़ गई थी, तो वो स्ट्रेस कम करने के लिए आपने कौन सी चीजें फॉलो की, या स्ट्रेस के लिए आपने कौन से चीजों पे काम किया? स्ट्रेस घटाने के लिए अपने को व्यस्त रखी मैं, जैसे जो मुझे अच्छा लगता है वो काम करने में। जैसे मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, मैं म्यूजिक सुनती भी हूँ, गाती भी हूँ। और उसके साथ फिर मतलब बच्चों को पढ़ाना, बच्चों लोग के साथ रहना, ये सब करके मैं थोड़ा सा अपने को फ्री रखी हूँ, स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करती हूँ। और जैसे मतलब रात में सोने वक्त भी गाना सुनते हुए, मतलब अच्छे से साउंड, मतलब म्यूजिक लगा के सुनना, ये सब करके छोटे छोटे कामों में मैं मतलब स्ट्रेस को कम करती हूँ। ग्रेट। और एक हमारे यूजर है जो पूछ रहे हैं, आपकी स्लीपिंग पैटर्न किस तरह की है, आप कितने घंटे की नींद लेती हैं, और आपका स्लीप कैसे होता है? स्लीप तो पहले ठीक से नहीं होता था, लेकिन अब है कि वही मैं 11:30 बजे तक मैं बैठ जाती हूँ और वो सुबह 7 तक मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद ओके, सारा दिन का काम, और दोपहर में खाने के बाद 10 मिनट वॉक करने के बाद मैं हाफ एन आवर रेस्ट लेती हूँ। ओके, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ये 7 आवर्स हो रहे हैं, तो 7 आवर्स की साउंड स्लीप सुचित्रा जी लेती हैं। स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ मेजर फैक्टर जो आपके स्ट्रेस को कंट्रोल में रखता है, जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। सो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप अपनी स्लीपिंग रूटीन प्रॉपरली फॉलो करें। मिनिमम 6 to 8 आवर्स की स्लीप आपके लिए जरूरी है। प्लीज स्पीक टू योर हेल्थ कोच मोर अबाउट दिस। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, वी हैव अ लॉट ऑफ easy solutions for that also. Talk to her and she can guide you. All right. With this, Suchitra ji, we come to a end of this journey, this discussion. But I'm sure कि हमारे at least 70% यूजर्स आज मोटिवेटेड हैं। आज कल से वो भी अपनी हेल्थ जर्नी आप ही के तरह फॉलो करना शुरू करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, बिफोर वी कंप्लीट टुडेज डिस्कशन, अगर सबसे टॉप 5 चीजें हैं या 5 चीजें ऐसी हैं जो आप हर एक डायबिटिक पर्सन को या हर एक डायबिटिक यूजर को बताना चाहते हैं, तो वो टॉप 5 चीजें कौन सी हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। पहला तो है मेजर कि ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए, वो प्रॉपर टाइम से लेना है। और मतलब खाने में भी जो खा रहे हैं वो समझ के, लेस ऑयल, मतलब जितना कम तेल हम यूज कर सके, वो एक बात है। और एक है कि एक्सरसाइज उसको रेगुलर करना है।
मतलब वो भी कभी स्किप नहीं करना, जिस दिन जैसा हुआ, ये नहीं कि हम हर दिन ही 1 घंटा ही चल पाएँ। किसी दिन ऐसा हुआ कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है तो हम आधा घंटा ही चले, आधा घंटा चले, वो 1 घंटे की जगह आधा घंटा में हम वॉक कर लिए, उसके बाद थोड़ा-सा फ्री हैंड एक्सरसाइज कर लिए, बस जिससे हमको मतलब हेल्थ में लेकिन एनर्जी थोड़ा-सा आ गया वैसे। और रात में भी खाना टाइम से लेना चाहिए और सोने का भी टाइम ठीक रखना चाहिए। और मतलब खुद के लिए थोड़ा-सा समय निकाल के खुद को थोड़ा-सा समय देना पड़ेगा, जितना भी काम आ जाए। हो सकता है कि हम लोग का ऐसा होता है कि किसी दिन हम लोग का कोई इन्विटेशन रहा, हम गए, में आते वक़्त थोड़ा देर हो गया, तो कोई बात नहीं। आए तो फिर कहीं से आ रहे हैं, तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं हुआ, तो हम पैदल आ गए, तो मेरा वो चलना भी हो गया। और अगर हम मतलब किसी व्हीकल से आ रहे हैं तो फिर हम घर आके थोड़ा 10 मिनट टहल लेंगे, उसके बाद फिर हम अपना बाकी काम करके सोने चले जाएँगे। ऐसे ही अपने आप को मतलब हर काम में भी समय निकाल के इतना थोड़ा-सा करना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली। आई थिंक ये काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। हमें लगता है डायबिटीज़ मैनेजमेंट एक डिफ़िकल्ट जर्नी है, बट एज़ फ्रॉम योर एक्सपीरियंस आई थिंक ये काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। बस 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि आपको कंसिस्टेंटली ये सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना है और दूसरा आपके हेल्थ कोच की पूरी एडवाइस आपको सुननी है। अगर 100% भी आप नहीं सुन पाए तो एटलीस्ट 70% आप सुनेंगे, तभी भी आपकी ब्लड शुगर और आपका A1C अंडर कंट्रोल आ सकता है। With this thought, we come to an end to today's journey. सबसे पहले तो congratulations सुचित्रा जी. You are the highest achiever for the month of June 2023 and we are happy and pleased to have you. आपकी ये जर्नी हमारे सारे यूजर्स के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और आपकी रियल सिनेरियोज आपने शेयर के लिए उसके लिए थैंक यू सो मच. And for rest of our AccuCheck Wealthy family, next week me and my team are coming up with a set of new information, a new speaker, lot of knowledge sharing, and a new topic which can help you manage your health journey. Do not forget to talk to your health coach about your queries on today's session. Do go through the YouTube video, which we'll be sharing with all of you shortly. If you have any questions, feel free to drop in a message on the chat tab in the coach box of your Wealthy app, of your AccuCheck Wealthy program. And most important, take care of your health. Have a happy weekend. Thank you. Bye bye.